the participants and our today's speaker, CA Shri Bhushan Gadia. Today we have taken a different program. I think we used to take the program on the Excel, Word, or PowerPoint, or like that. So this time we have taken the program on the Office 365, and the thing is Office 365. The thing is suggested by CA Bhushan Gadia himself that we should take the program on this one, because nowadays in even ITOT also it is compulsory to get the course of Office 365. They have included Office 365 in IT course for the students. So we CS must know about that, and it is very useful for all of us in the day-to-day practice. And it is the time of the information technology that we should be friendly with all these technology that will help us for flourishment of our practice. And we are lucky enough, and that CA Bhushan Gadia is always ready for the branch and for imparting the knowledge to our members, whatever he possesses. So I request CA Vicky Birla to give introduction of CA Bhushan Gadia. Thank you, sir. Actually, Bhushan sir doesn't require any introduction in Jalgaon itself, but still, it's my privilege to introduce him. CA Bhushan Gadia is a practicing chartered accountant since 2014. He passed CA in very fertile at the age of 22 only. He was the 40th All India ranker in IPCC. He has cleared CISA and DISA both the exams in first attempt in 2015. He is popularly known as Tech Guru among all the students and members. He is a regular faculty of ITT and Advanced ITT at Jalgaon branch of ICI. He has conducted various seminars on GST for the trade organizations and public at large. He published various articles on Tax Guru related to GST. I know you all are very eager to hear him. So without taking much of your time, I request Bhushan sir to please take the charge and guide us. Over to you, Bhushan sir. Thank you so much, Vicky sir. So very good morning, good evening to all of you. I, CA Bhushan Gadia, welcome you all to this webinar on the new Excel with Microsoft 365. I strongly believe that just like food, shelter, and clothing are the basic necessities of any human, just like that for a to be practice business, you be in, you do the knowledge of these things is important for you. Am I audible? Okay, sir. Yes. Yeah. The basic understanding of basic knowledge of these things is very important for the survival of any chartered accountant. In this webinar, I'm not going to teach you how to work with Excel. I'm not going to teach you how you can use VLOOKUP or how you can apply pivot tables. This is going to be a bit different. In this webinar, I'm going to show you what all new features or what all is the future of Excel. I will request all the participants to mute themselves, please. Yeah, so I'm not going to teach you what Excel is or how to work in Excel, but I'm going to show you all the new features that are upcoming in Excel, which are already there or which are going to come in future. These new features are going to save a lot of time of us professionals, and we would be more productive in our work. But on the only prerequisite for using these features is that you should possess a subscription of Microsoft 365. Before going forward, I just have created a simple poll for you all. I would like to you all to please answer to that poll. I am launching a poll right now. I want you all to please select which version of MS Office do you currently use. Might it be 2007, 2010, 2013, 16, 19, or Office 365? Hello. Okay.
I request all to mute themselves, please. And 4 people have now. Please mark answer so that I can basically guide what all you are coming from and what all you are going to, where you are going to. I got 50% votes, and till now, Office 2010 is the most popular choice. Okay. More answers are pouring up. 50% are still pending. Okay, I think let's end this poll here. So the result is, as you can see on the screen, around 37% people are using Office 2010. So Office 2010 remains the popular choice that everybody is using. But today we are going to discuss about of Microsoft 365. So just okay. The basic question that arises in anybody's mind is, what is Office 365 or Microsoft 365? To give you a better understanding of this, let me go back to history. In 2011, Microsoft first launched this suite, and at that time it was called as Office 365. Office 365 or Microsoft 365, the naming was changed in 2020. Now onwards, after 2020, they call it Microsoft 365. This and subscription model. मनीष भाई आपका आवाज ब्रेक हो रहा है. याच्याकडून पैसे नाही आले का रे? आवाज नहीं आ रहा है. हाँ सर आवाज सर पैसे येऊन जातील सर. म्यूट करा सर. हाँ भूषण भाई आप क्लियर है बोलिए. आवाज आ रहा है? हाँ ठीक है. आ रहा है. So basically the Office suite that you all use, may it be Office 2010, 2007, 2016, 2019, whatever it might be, it has got a perpetual license, meaning you have to pay just once for the software, and then you can use it for any number of years. Like you can see, Office 2010 is being used by so many people. It was released in 2010 or 11, I guess, and since that time, everybody is using that software till today. So it has a perpetual. You have to pay every year subscription of that software. Not really, you have to use the service of that. So this is what the big difference was in Office 365, and the other differences, if I might point the include. Example, if you have Office 2010, you won't get that a release today to that Microsoft Office. So you won't use the new feature that I'm going to show today. Office 2010 or 2019. So, to get the latest features, new features, you compulsory have a subscription. The second difference is that Sunil sir, please mute yourself. And if Office buy Office software, say Office 2010 or 2013 or 16, you get only a bundle of softwares like Excel, Word, PowerPoint, like that. If you have bought Office, if you buy Microsoft 365, you get a bundle of services. It includes a subscription of OneDrive. You get 1 GB of free storage. You even get 60 minutes of live. The latest softwares that Microsoft is going to introduce on a future timeline. All those new things on Microsoft 365.
Bhushan, you are on mute. Okay. Audible now? So, by Office 365, you have two options. One is family, and the other is personal. You can see the pricing. It's 6,200 per year and 4,900 per year. As I told you, it has got a monthly pricing or a year. Either buy it monthly or you can pay for a whole year. The basic difference between personal is that if you buy only use it on a single PC. Use, but if you buy an office, use people. And is worth noting that 365 fan, you get 1 TB of storage for every user. So you get a total of 6 TB cloud storage. I believe this most comparison why you should definitely buy Microsoft 365 Family Edition if you have got a lot of data that you have to or you use the cloud, because I couldn't find anything cheaper than this storage option. And if you factor in the benefits of using Suits, Excel, Word, Outlooks, and OneDrive, if you factor everything, all these, then I of Microsoft that you can definitely buy. So yes, it's about how you can buy and you can install Office 365 in your office. After this introduction, let's start with the actual things that I want to show you. So I'm going to show you new things that are there in Office 365, and definitely I'm using 4 years now. They are ever evolving. Two things that I am were not there in the last year. They are just, as you can see, a lot of new things are being implemented by Microsoft. They are really very cool things. Start with the first thing that I'm doing is the types. This table screen share. It is visible. Okay. So as you can see, there is this table which has got a few the country, elevation, area, and this table on it. The most notable thing this table is that in the column where I have written the country names, you can see a small icon here, country's name. This is states. This shows that I'm using a data. Using a data type in Excel, a lot of information which I will like to show you now. Suppose I go to this country, I select this country and I press so you can see I can select from a lot of information directly be fetched and get it directly. For example, if I want to fetch in the GDP of these countries, and if I press enter here, you can see that Excel has imported the GDP of all these countries directly from internet. I don't need to go manually, and I don't need to fetch it manually from there. I can directly import this information from the internet. Suppose I want to see the population of any country. I can type in population, and if I press enter, I can get the population of that country. I can even do a small analysis on this data. Say, suppose I want to find out what is the per capita income. So I do this here, and I'm able to check the per capita income of every country. Also, if I got this 10 countries here, suppose I want to add another country. Suppose I want to add Greece to this. So if I type in Greece, it will go online. It will search the data and it would fill up everything here. As you can see,
the details related to been generated here. So the next question arises to how I can use this data type, or how I can tell Excel that this data is a geography data type. So here I have got a basic data again. I have got 4 countries: India, Pakistan, UAE, Greece, and at that it will be able to see. Then there is no icon before this country's name. So this means that this has not been yet converted into a data type. As you can see, if I do a dot here, I cannot get that list generated here. So this means that this is not any data type. This has not been converted into a as of now. Convert into a data type, I will have to go to the data options, data tab, and you can see 2 data types here. One is stock and another is geography. So I have selected this data complete, and I will click on geography here. So once I click on geography, Excel will just analyze the data, and then it will convert this data into a data type. So as you can see, this data has means every country has got a symbol now. And now if I go and try to find the information, I can get everything. This data type of geography not only works on a country, but even for states. Suppose I have got 4 states: Maharashtra, Pakistan, and I want to convert this into a data type. I can do that too, and then it will give me information related to that particular state. Suppose I want to find the area of Maharashtra. I can do this. I can get the area. Suppose I want to find the population of Maharashtra. So I can type in population, and I can get the population of that area. So this geography is a data type, and all the features that I'm going to show you, you won't find this in any other edition of Microsoft Office other than Office 365. In fact, some of these that I'm going to show you are not available to all the users of Office 365 also. I am an insider of Office 365. There are various update tiers, and I'm under insider update tier. So I can download all the features first, and I can use them, and I can suggest Microsoft that you can make changes in this formula or these options like that. So that is why in fact, you won't find all for every Office 365 user also. So this was the first data type, that is geography. The second data type that I want to show you is stocks. As you can see, again, I have got a table here. I have got 3 stocks: Infy, Jain Irrigations, and Reliance Industries. I have got a 52-week high and 52-week low. The stock directly. So I will data off or all this information for SBI also. So I will write SBI here. It will go online and fetch the data and give me the data. So as you can see, this is a very powerful tool. Suppose for someone who is into he can get all the data beforehand, and he just don't need to go anywhere other than Excel to information. Suppose I want to find something called PPAP. I can get that data directly. Suppose there is a company called Spark, so I can get that data here. So whatever company's data you want to find, you can directly go. You can convert that into a stock data type. Then you can get all this kind of information directly from internet. You don't need to find it manually for any company. Just like this. What we will do is after every new thing I show you, let's have a simple. If you have got any queries regarding to this, then we will take those queries at this moment itself, so that it doesn't get very confusing in the end. So anybody has got any query regarding Praveen this? has asked a query. Praveen has asked the query. ये प्रवीण आज ही है. Presently, how many data types are there in the system? So presently, there are only 2 data types. As you can see here, there is no other data type. But a lot of new data types have already been discussed by Microsoft, and they are going to roll out those in the near future. So might be till this year's end, I guess a lot of new data. For example, being a fruit data type. Suppose I have got a list of fruits, then I can convert that into a fruit data type, wherein I can get the data information directly from internet. I mean, how many calories are there in that?
how many types of that food are there, or is where it grows, just like that. So all this information we get from Excel itself. So in at present there are only 2 data types, which are a lot of data types are going to pop up. Okay, anybody has got any other query? Let's go to the next. So this is a formula now. I have got a list of different countries in different rows here. So as you can see, India, United States, Russia. I have got a list of these countries. And suppose I have got to concatenate, or I have got to merge all these countries' name in a single cell in Excel. So if I try to use a concat function, if you concat function, there is one function called as concat. So for using that, you will have to select each and every country name one by one. Okay, so this is how I can merge that data into a single cell. But in Office 365, they have brought up a new function that is called as array to text. And what this function does is, if I use this function, and if I select this complete list, and if I press enter, you can see that the complete data that was there in different row in my Excel table, Excel has merged a single cell. As you can see, every country's name is there in a single cell. So array to text can be useful if you have to merge the data into a single cell. Okay. Anybody has any queries regarding this function? Shall we go ahead? Yes. The most important and the most beneficial what I can say feature that has been introduced in Office 365 is this fill range and dynamic. I hope most of you would have used a function called as transpose. So suppose I have got this data for wherein I got this months from April to December, and I got them in a horizontal way, but I want to convert it into a vertical manner. So what I can do is I can use a function called as transpose. So for that, what I need to do is I have to select the number of rows that are there. So that month I have to select first. I will type in transpose. Then I have to select this data, and I just cannot press enter. But if I have to use this formula transpose, then I have to press Control Shift and enter. See, I have CSE, the CSE formulas, Control Shift Enter formulas. So what this does is it would convert range into a vertical range. It would transpose that range into a vertical range. So as you can see this formula here, there are 2 curly brackets, one in the beginning and one in the end. So this shows that this is a array formula. Array formula meaning the result of this formula is in different rows of Excel. By default, whenever we use any formula in Excel, the result is shown only in that row of that where we have applied the formula. But these array formulas, they show the result in different rows or different columns of our Excel sheet. So as you can see, this transpose formula has been applied like this. But what happened is that in Office 365, they have replaced this CSE or Control Shift Enter altogether. They have deprecated this altogether. And now what they do is, in the simple time transpose, I can select this range and I press enter. If you will see, doing this also does the same transpose thing only. But now if you will see, this data has got a small border of a border around itself. This means that this data has spilled. Spilled meaning data on first row. But the result for this, I have a transpose, and I have a first in the row C4. But that formula is shown in all the rows, C5, C6, C7, all the rows below the formula. And if I go to any row in this formula, I can see a blue border around this data.
Also, if I go to the first cell, see, you can see the transpose is highlighted here. But if I go to the other cells, transpose is not highlighted. So this shows that I have used a spill range, or I have used a dynamic array formula in Excel. And this is one of the most important update that they have got. This is very important for the fact that earlier when we used to apply formulas like transpose, so suppose to apply transpose, I have to know the exact number of rows I have to select to apply that formula. As you can see, if I apply transpose only directly using Control Shift Enter, I will get the result only in the first row. As you can see, I have applied Control Shift Enter. I will get the result only in the first row. So to apply the transpose formula, I should have known the exact number of rows that I need to select to apply that formula. But because of this spill range of dynamic arrays now, I do not need to know the exact number of rows or columns to select the formula and apply it to one cell. That the result of that cell or the result of that formula will be automatically spilled or automatically shown in all the cells below it. Are you getting my point? So this is one of the biggest benefit or biggest update that they have got. And based on this function, based on this what you can say is based on this information, or based on this dynamic array thing, a lot of new functions they have developed, which I am going to show you in the next sheets. So, but understanding this is very important. One more important thing. Suppose I have to reference I am making a formula and I have to reference any cell in this. So suppose I reference this May here. So it will show me a May. It will give me May here. Suppose I reference August here. It will September here. It will show me September. Suppose I reference any cell from this dynamic array formula, it would give me that here. One thing that is very noticeable here is that if I suppose select April and press enter, it will give me only April. But if I select April and put up a hash here, so as you can see, Excel has selected this complete array altogether. And if I press enter, it will give me that array as it is to this position. So to reference any array in any formula, I need to select the first cell where that formula was entered. In our case, cell B4, and I have to put up a hash mark in front of it. Putting a hash shows Excel that I need to select the complete array. I don't want the first. I don't want the value of that cell, but I want the value of the complete array of data. If I do this, it will give me the data. Suppose I want to get that data here in cell E2. If I do this, it gives me an error. It shows a spill error. This is a new kind of error which they have to bring in because of using of this dynamic arrays. This means that whenever the result of this array is going to be produced, there is some data already present in the resultant array. Apply the formula here, is going to spill till this column here, this row here. It's already data here, so that is why it is giving me a spill error. Suppose if I delete this data here, it will give me all the data properly. So spill error is a new kind of error. We have got reference error, we have got value error, but spill error is a new kind of error which is there only in case of dynamic arrays. Also, suppose if I have to find the length, suppose I have to find the length of the string of the data. Earlier, what to happen is to apply this form every information that I had to find the formula separately, for May separately, for June separately. But not now. What I can do is I can do len. I can select first cell, center. The result of len formula is also spilled. It is also being shown in various different rows. So I need to apply the formula only once now. I don't need to do it again and again. So this is again another benefit of using spilled range or dynamic. On this, does anybody have any questions regarding dynamic arrays or spill range? No questions?
Okay. Another very useful case is this multiplication table. Suppose I have to create this multiplication table, wherein in cell B3 I have to get the multiplication of 1 into 1. In cell C3 I will get multiplication of 2 into 1. In D3 I will get 3 into 1, like this. So if I got to do it manually or in any other version of Excel, what I need to do is I need to do this into this into 1. I need to do this for all the information in the data in the table. But because of this introduction of dynamic arrays, what I can do is I can select this data and I can directly multiply it by this. And I will get the result in the form of an array spilled in all the cells directly. This means that I have to apply the formula only once. I don't need to apply it again and again in every single cell. Suppose I have to add 11 to this multiplication table. So what I can do is I can just change this formula a bit, and it will give me the result for 11 also. You can do this, keep on continuing doing this. You just need to change the first cell of that formula, and all the other cells in that table will automatically be filled. Okay. Any questions up to this point? Will you, Bhushan bhai, will you show again which formula you have put on in the first table? Sorry, sir. First cell. Which formula you have applied in the first cell? What I have simply done is I have selected this range. मुझे multiplication करना है 1 से लेकर 11 तक का सबका, और मुझे multiplication यहाँ इससे करना है, तो इस सेल में जितने हैं सबसे करना है. इस सेल से Excel क्या करेगा अब 1 into 1 यहाँ पे अलग फिल्टर करेगा. मुझे हर सेल में जाके वो टाइप करने की जरूरत नहीं. Yes. सिंपल वो रेंज सिलेक्ट की है और दोनों को मल्टीप्लाई किया, बाकी कुछ नहीं. ओके. Yes. ठीक है. सो द नेक्स्ट फॉर्मूला व्हिच इज हां बोलिए. ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी काम करता है क्या? करेगा ना सर, ट्राई करके देखिए. ओके, गुड. Yes, it works. Works. Very good. Addition still works. बेसिकली फॉर्मूला जो है वही है, सिर्फ वो इसका फायदा क्या हो रहा है एक्सेल 365 यूज करने का, कि वो मुझे अलग अलग जगह फॉर्मूले के लिए वो ऑटोमेटिक हर जगह पे स्पिल कर देगा फॉर्मूले. जैसे आप यहाँ पे तो फॉर्मूला वही है हर सेल में, कि हर जगह से वो जो डेटा रहेगा वो बराबर से देगा फॉर्मूले के बेसिस पे. Next formula that I have to show you is called as sequence. This sequence formula is based on dynamic. Again, you will not find this formula in any other Office editions. Only in Office 365 you can see this. I have got a few examples for this already built up. So this is the first example. It has got 4 information I need to pass to column start. So I have only given the row number. In this sequence, starting from 1, it will show me that sequence in 5 rows. So 1, 2, 3, 4, 5. This 5 rows it will put me, and it will increment the next cell by 1. So 1, 2, 3, 4, 5, like this. Suppose I check this. So I have got sequence formula again, 5 and 2. So I have got 5 rows and 2 columns. So it will give me a table with 5 rows and 2 columns, wherein the first number will be 1 and all the other numbers will be increased by 1. So 1, 2, 3, 4 example. Now the third example comes. The first again sequence that I'm going to in the sequence that I'm going to pass is rows. I want 5 rows. I want 2 columns. The start should be from 10. I want the sequence to start from 10. And it should increment, or it should increase by -1, suppose. If I do this, 8, 7, 6, like this. Suppose I do this +1. So it will give me 10, 11, 12, 13 sequence like that. If I do an increment by 5, it would increase the sequence by 5, like this. So, and another important thing,
we can use two formulas together. In this case, I have used transpose to sequence. So suppose I got this sequence of 5 and 2. As you can see here, 5 and 2 sequence formula here. It would look like this. But because I am using transpose here, it has transposed the number of rows in number of columns. So here there were 5 rows. Now here are 5 columns. Here there were 2 columns here. There are 2 rows here. So it has transposed the data. So you can use 2 formulas together also, and still it will spill that range to spill the data to different rows in the sheet. A simple formula here. Now the formulas that I'm coming up are the ones which are actually very useful for me. I'm using these formulas since, as I said, since the past 3-4 years now, and believe me, a lot of time I have saved using this. First formula in this series is रवि सर, एक चीज मुझे बताइए, अगर सपोज आपको ये जीएसटी लिस्ट, एक आपके पास जीएसटी है और आपको इसमें से सिर्फ यूनिक आइटम्स निकालने हैं, तो आप कैसे करते हो? रिमूव डुप्लीकेट्स का इस्तेमाल करते हैं डेटा टैब में। रिमूव डुप्लीकेट्स। सो आप क्या करते हो? इसको इस लिस्ट को हम इसको मैं नई जगह पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट्स करता हूँ। बराबर, और इसको सिलेक्ट करके रिमूव डुप्लीकेट। हाँ, जो डुप्लीकेट शॉर्टकट की एन यूज किया, रिमूव डुप्लीकेट कर दिया, डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव 32 यूनिट एलिमेंट्स, उसमें से 32 वैल्यूज यहाँ पे छोड़ दी। लेकिन द बिगेस्ट, इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि सपोज मैंने रिमूव डुप्लीकेट्स तो कर दिया, लेकिन सपोज आगे जाकर मेरा डेटा चेंज होता है। सपोज यहाँ पे इसका मुझे बाद में पता चलता है कि इसका जो जीएसटी नंबर तो गलत था, यहाँ पे एंड में 1 होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 1 करूँ तो क्या वो इस डेटा में अपडेट होगा क्या? नहीं, बराबर है, उस डेटा में अपडेट नहीं होता है। यूनिक चीजें निकालने के मैं रिमूव डुप्लीकेट्स नहीं किया था, तो उसके कारण यहाँ पे वो अपडेट नहीं होगा। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, इन सारी चीजों को काउंटर करने के लिए एक नया फंक्शन एक्सेल 365 में आया है, जिसका नाम है यूनिक फंक्शन यूनिक फॉर्मूला यूज करके आप यूनिक आइटम्स निकाल सकते हो। सो आई विल अप्लाई दिस फॉर्मूला नाउ। यूनिक, मुझे कौन से एरे के यूनिक इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो इस एरे में से, मतलब जीएसटी नंबर की जो लिस्ट है उसको सिलेक्ट करता हूँ मैं और इंटरफेस करता हूँ। जैसे ही मैं इंटरफेस करूंगा तो ये जो लिस्ट आपके सामने है, ये सारी यूनिक जीएसटी नंबर्स की लिस्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 31 आइटम्स अभी आपको दिखेंगे। एंड अगेन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ब्लू बॉर्डर है, इसका मतलब ये है कि एक स्पिल्ड रेंज है, इसका फॉर्मूला एक सेल में लगा हुआ है, लेकिन उसका जो आंसर है, फॉर्मूला का जो आउटकम है, वो अलग अलग सेल्स में दिखेगा। ये 31। अब सपोज मैं यहाँ पे जाके अगर यहाँ पे 32 काउंट हो गए, मतलब उसने उस चीज को इसमें इंक्लूड कर लिया। तो यूनिक जो वैल्यूज आई है मेरी, उसमें वो यूनिक के अंदर उसने एक और यूनिक आइटम बढ़ा दिया। तो ये जो जीएसटी नंबर यहाँ पे डाला है मैंने, वो सिर्फ इस पूरे डेटा में सिर्फ एक ही जगह पे रहेगा, नया नंबर है मतलब बेसिकली, इसलिए वो यहाँ पे आ गया। So this is the formula that is unique, and it can be used to find out unique. It can be used to remove duplicates. I can also apply this on particular field. जहाँ पे नाम है कंपनीज का, वहाँ पे मैं ये formula apply कर सकता हूँ। I type in unique. If I select a list of particulars, I can get a list of all the names here. Again, as you can see, it has been spilled. I have applied the formula on in the cell N4, but the result of that formula will be shown to me in all the different rows. I can also use transpose on this. Suppose I need to transpose this data. अभी ये रो वाइज दिख रहा है, जिसको कॉलम देखना है ट्रांसपोज कर सकता हूँ। सारा डेटा ट्रांसपोज हो गया, सारे कॉलम वाइज आ गया। तो ये फॉर्मूलाज हम एक दूसरे के साथ मिक्स एंड मैच करके भी यूज कर सकते हैं। ओके, anybody has got any queries in unique? Unique में किसी को कोई प्रॉब्लम? यूजफुल तो है सब, अपने को अपग्रेड करने पड़ेंगे। नो क्वेरीज। ऑफिस 365 पेड वर्जन है ना। सॉरी शशांक, आवाज नहीं आ रहा। हेलो।
No queries. शशांक कुछ तो पूछ रहा है शायद. They were talking in with them. अच्छा. Somebody. After unique, the next function that I wanted to show you is called as filter. अब filter हमने काफी यूज किया रहेगा हर बार. सपोज ये डेटा है, यहाँ पे मुझे filter अप्लाई करना है, तो मैं इस डेटा को पूरा सिलेक्ट करता हूँ. शॉर्टकट की Alt DFF है, तो उससे मैं फिल्टर लगा देता हूँ. सपोज अब मुझे चाहिए कि किसी एक स्पेसिफिक कंपनी का सिर्फ बिल दिखना चाहिए. सपोज अलाइड इंडस्ट्रीज के बिल दिखने चाहिए मुझे, तो मैं इस लिस्ट में से अलाइड इंडस्ट्रीज सिलेक्ट करूंगा, तो मुझे सिर्फ अलाइड इंडस्ट्रीज के दिखेंगे. सपोज मुझे फास्टर इंडिया के चाहिए, मैं फास्टर इंडिया सिलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ फास्टर इंडिया के जितने बिल्स हैं उतने ही दिखेंगे. तो ये हम हमेशा से करते आए. फिल्टर कोई नई चीज नहीं है हम लोगों के लिए. लेकिन एक्सेल 365 में उन्होंने फिल्टर का एक फंक्शन या फिर फिल्टर के लिए एक फॉर्मूला भी अलग से दिया हुआ है. इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं दिखाता हूँ. तो इसका सिंटैक्स है, फिल्टर टाइप करना है आपको. सबसे पहली चीज आपको इसको जो देनी है वो है एरे. अब सपोज मुझे ऐसा चाहिए कि जो मैं पार्टी का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, उस पार्टी के कितने कौन से बिल्स है वो मुझे यहाँ पे मिलने चाहिए. सो अगर हम नॉर्मल यूज करते हैं, सपोज वेदांत इंडस्ट्रीज है, तो वेदांत अगर मैं नाम सिलेक्ट करूँ, यहाँ पे उसका एक बिल है, ये एक मुझे दिख जाएगा. यही अगर मुझे इस फॉर्मूले से अगर करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ. मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा फिल्टर. एरे मुझे देना है यहाँ पे. एरे मतलब क्या कि मुझे कहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्या चीज मिलनी चाहिए. तो मुझे मिलना चाहिए वाउचर नंबर. वाउचर नंबर को सिलेक्ट करूंगा. अगला जो है चीज दैट इज इंक्लूड. इंक्लूड मतलब क्या कि मुझे अब यहाँ पे कंडीशन देनी है कि फिल्टर जो आपको करना है वो क्या बेसिस पे करना है. रहेगा कि वो पर्टिकुलर के आइटम्स जहाँ पे उस पर्टिकुलर का नाम है वेदांत इंडस्ट्रीज, अगर मैं ये अप्लाई करूँ तो यहाँ पे 54 नंबर का बिल मुझे दिखा दिया. सपोज मैं यहाँ पे कोई कंपनी चेंज करता हूँ, सपोज मैं पटेल पॉलीमेट करता हूँ, और पटेल पॉलीमेट की 49, 50, 51 तीन बिल्स है, वो मुझे यहाँ पे दिखा. क्रॉस चेक कर लेते हैं. पटेल पॉलीमेट 49, 50, 51 ये तीन बिल है. तो फिल्टर फंक्शन यूज करके मैं डेटा जैसे चाहिए वैसे मैं फिल्टर कर सकता हूँ. अगेन जैसे मुझे देखना था क्या कंडीशन चेक करनी है. अब मेरे केस में मुझे ये कंडीशन चेक करनी थी कि इस एरे में जहाँ पे भी पहला पे जो इस सेल में है वो ना, अगर मैं एंटर करते हैं आपको दिखाएगा. सिंपल फॉर्मूला बट अ वेरी वेरी यूजफुल फॉर्मूला. एंड ये कंडीशंस है ना यहाँ पे जो मैंने दी है, ये आप कंडीशन भी यूज कर सकते हो, जगह पे भी यूज कर सकते हो. एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. सपोज मुझे यहाँ पे अभी ये पूरा डेटा इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, जीएसटी नंबर, ये सब चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेट. मतलब 1 मई के पहले के जितने इनवॉइसेस है वो मुझे दिखने चाहिए. तो अगर मैं नॉर्मल फिल्टर अप्लाई करूँ यहाँ पे, अगर मुझे फिल्टर फंक्शन नहीं पता, लेकिन मुझे फिल्टर करना है 1 मई के पहले के सारे इनवॉइसेस, तो मैं कैसे कर सकता हूँ. यहाँ पे मुझे डेट फिल्टर में जाना पड़ता है, यहाँ पे मुझे बिफोर डेट लेना पड़ेगा, फिर डेट डाल के मैं वो कर सकता हूँ. लेकिन अगर मुझे ये चीज फिल्टर फॉर्मूले से करनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं फिल्टर करूँगा. मुझे फिल्टर करना है पूरा डेटा, तो अब मैं रेंज सिलेक्ट करता हूँ. सिर्फ पहले मैंने वाउचर नंबर दिया था, अब मैं वाउचर नंबर ना देके पूरा डेटा सिलेक्ट करूँगा. मैंने पूरा आईजीएसटी तक का पूरा डेटा सिलेक्ट कर दिया. मुझे जो भी आंसर मिलेगा, जो भी मेरा डेटा आना चाहिए, वो इस पूरे एरे का आंसर आना चाहिए. सेकंड चीज जो मुझे देनी है कॉमा के बाद, दैट इज मुझे क्या चीज चेक करनी है. तो मेरे केस में मुझे क्या चेक करना है कि ये जो मेरी डेट है, इफ इट इज लेस देन दिस डेट हियर, देन ओनली आई वांट टू गेट द डेटा. इफ आई डू दिस, मई के पहले के मतलब सिर्फ अप्रैल के जितने बिल है वो सारे आपको दिख गया. एज यू कैन सी, हर एक कॉलम जितना मैंने सेट किया था, जो मेरा चीज थी, क्राइटेरिया था, यहाँ पे दिया था मैंने, ये रेंज सिलेक्ट की थी. तो ए से जे कॉलम तक का जितना डेटा है वो सारा यहाँ पे मुझे दिख जाएगा. जीएसटी नंबर, टोटल गुड्स वैल्यू, सीजीएसटी सब यहाँ पे आ जाएगा. अगर सपोज अब मुझे यहाँ पे डेट चेंज करनी है, सपोज यहाँ पे 30th मई करूँ, तो सिर्फ आगे के जितने इनवॉइसेस हुआ आ जाएंगे. आप 30th मई अगर मैं करूँ तो 30th मई तक के जितने इनवॉइसेस वो सारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे.
किस तरीके से मैं यहाँ पे एक सिंगल डे के पहले के इनवॉइसेस है वो भी फिल्टर आउट कर सकता हूँ। इसका अगला एडिशन अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो दैट इज बिटवीन टू डेट्स। सपोज आई वांट टू फाइंड ओनली बिटवीन 1st May 2019 टू 30th May 2019। अब इसके लिए मुझे कंडीशंस कैसे देनी है वो समझना थोड़ा ट्रिकी है, तो ध्यान देना यहाँ पे। मैं अगेन फिल्टर फॉर्मूले से शुरू करूंगा। मुझे पूरा एरे सिलेक्ट करना है, मुझे पूरा डेटा देखना है, मैं पूरा एरे सिलेक्ट करूंगा। अब जो कंडीशन मुझे देनी है वो इम्पोर्टेंट है। मुझे यहाँ पे 2 कंडीशन देनी पड़ेंगी। एक कॉलम है, ये है जो मेरा 1st में है, इससे आगे की डेट मतलब इससे ग्रेटर देन एंड 30 में से लेस देन। तो 2 कंडीशन मुझे यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी एक ही सिंगल फिल्टर फॉर्मूले के अंदर। तो वो कैसे करनी होती है, तो मैं यहाँ पे मेरा डेटा पूरा सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा दिया मैंने। अब मुझे यहाँ पे जब 2 कंडीशन डालनी रहेगी तो वो दोनों कंडीशन अलग अलग ब्रैकेट में डालनी पड़ती है। तो फर्स्ट के अंदर मैं लिखूंगा, फर्स्ट कंडीशन के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो डेट है इसको सिलेक्ट करूंगा, दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस 1st डेट। ब्रैकेट क्लोज किया, मैं इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे एंड होता है, तो एंड के लिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, नया ब्रैकेट मैंने ओपन किया, वापस मैंने डेट सिलेक्ट की, दिस डेट शुड बी लेस देन 30th। एंड अब मैं इसको क्लोज करता हूं। एज यू कैन सी मुझे वो सिर्फ अब 1st में से 30th May के बीच में का जितना इन्फॉर्मेशन जितना डेटा रहेगा वही दिखा है। अगर सपोज मैं 1st April 2019 करता हूँ और 30th April 2019 करता हूँ, मुझे सिर्फ वो अप्रैल के इन्वॉइसेस दिखाएगा। तो फिल्टर फॉर्मूला यूज करने का फायदा क्या है कि आप आपका डेटा अगर आपको कोई रिपोर्टिंग करना है तो आपको हर बार फिल्टर यहाँ पे जाके अप्लाई करो, डेट पे जाके या फिर पार्ट पे जाके, कुछ भी जरूरत नहीं है। आपका डेटा डायनामिक जाएगा, आपकी रिपोर्ट्स जो रहेगी वो डायनामिक हो जाएगी। आपको सिर्फ जो भी मिला है उसमें किसी और सेल को रेफरेंस करना है, एंड जैसे ही आप इस सेल को चेंज करोगे, जैसे कि इसमें अगर मैंने सपोज पार्टी का नाम चेंज किया तो उसके बिल्स ऑटोमेटिकली नीचे चेंज हो जाएंगे। जैसे जैसे पार्टी का नाम चेंज करूंगा बिल नंबर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। या फिर जैसे यहाँ पे मैं डेट चेंज करूंगा 1st March 2020 31st March की इमेज ऑटोमेटिक दिखेंगे। तो रिपोर्टिंग के अंदर ये बहुत इजीली मतलब बहुत काम आ सकता है आपको। एंड उसमें भी डायनामिक रिपोर्टिंग अगर आपको करना है, जहाँ पे आपको कुछ एक क्राइटेरिया चेंज करके आपको वो सबसे रिपोर्ट्स बदलने चाहिए ऑटोमेटिकली, वैसा का चाहिए तो आप ये डेफिनेटली यूज कर सकते हो। यूनिक और फिल्टर को यूज करके मैंने एक चीज बनाई हुई है यहाँ पे, जिसको मैं बोलता हूँ डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन का मतलब क्या है, मेरे पास यहाँ पे 2 ड्रॉप डाउन है, एक है नेम ऑफ पार्टी और एक है बिल नंबर। जो इस डेटा जो नीचे डेटा दिया है इस डेटा के ऊपर ही बेस्ड है। नेम ऑफ पार्टी के अंदर क्या है कि जितनी पार्टीज है अलग अलग, उन सारी पार्टीज के नेम यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे एक कोई कंपनी सेलेक्ट करता हूँ, शिव लीला इंडस्ट्रीज। जो बिल नंबर रहेगा वो सिर्फ शिव लीला के मुझे दिखना चाहिए। यूजुअली जब हम ड्रॉप डाउन लिस्ट अप्लाई करते हैं एक्सेल के अंदर तो वहाँ पे जो लिस्ट रहती है वो फिक्स्ड रहती है कि मैं जितनी जितनी दूंगा उतनी सिलेक्ट करते हैं मुझे। लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंट है, ये डायनेमिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनती है। तो इसमें होगा क्या कि जो कंपनी में सेलेक्ट करूंगा उसके जितने बिल नंबर से उतने मुझे दिखाएगा। अब जैसे शिव लीला मैंने सेलेक्ट किया तो शिव लीला का सिर्फ 2 ही बिल है तो वही दिखेंगे मुझे। अब सपोज मैं कोई कंपनी चेंज करता हूँ संजय, उसके जितने सब वही दिखेंगे मुझे। अगर मैं और कोई कंपनी वेदांत लेता हूँ तो उसका एक ही बिल है तो वही दिखेगा मुझे। तो दिस इज व्हाट आई कॉल्ड एज अ डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। एंड बिफोर ऑफिस 365 अगर ये आपको बनाना होता था, इसका बहुत डिफिकल्ट तरीका है जिससे आपको ये बनाते आता है, बट क्योंकि हम ऑफिस 365 में है तो इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत बहुत ज्यादा इजी हो गया है। सिंपल चीज करनी है मुझे यहाँ पे 2 ड्रॉप डाउन लिस्ट डालनी है। पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर मुझे नाम चाहिए, तो नाम के लिए मैंने क्या किया है, मेरे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ पर्टिकुलर्स के अंदर नाम तो है लेकिन ये रिपीटेटिव नाम है। अगर सपोज मैं यहाँ पे जाके ड्रॉप डाउन लिस्ट अप्लाई करता हूँ और वहाँ पे ये रेंज अगर मैं डाल दूँ तो वो रेंज के अंदर जितने आइटम्स है वो सारे रिपीटेटिव है, वो दिखने से बराबर नहीं दिखेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक अलग लिस्ट बनाई यूनिक आइटम्स की। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे यूनिक जितने भी है पर्टिकुलर कॉलम में जितने भी आइटम्स है, जितने भी कंपनीज है, उनसे जो यूनिक है वो सब मैंने निकाल लिया यूनिक फॉर्मूला यूज करके। एंड देन मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाई, मैंने इसे कहते यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट किया। इसके सोर्स में मैंने क्या किया, तो मैंने Q7 मतलब यहाँ पे मेरा फॉर्मूला फर्स्ट लगा था एंड हैश कर दिया। जैसे मैंने हैश किया तो इसका फायदा क्या हुआ मुझे कि ये अब इस जो पूरी मेरी एरे है
लिस्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे ओके ओके करता हूँ, सपोज एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे मेरी कोई पार्टी हो गई, सपोज श्रद्धा की जगह पे मेरा इसका नाम ABC हो गया, मेरे को गलती से मुझे पता चला कि यहाँ पे नाम अलग होना चाहिए था। जैसे ही मैं यहाँ पे ABC करता हूँ, तुरंत मेरी जो ये लिस्ट है यहाँ पे भी वो अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं ABC सिलेक्ट कर सकूंगा, ABC का सिर्फ एक ही बिल रहेगा। इसका रीजन ये है कि मैंने यहाँ पे यूनिक फॉर्मूला यूज किया है। जैसे मैंने यहाँ पे नाम चेंज किया तो ये यूनिक की जो मेरी लिस्ट थी वो चेंज हो गई। मेरी ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर बेस्ड है, तो जैसे ये चेंज हुई तो मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट भी चेंज हो गई। तो यहाँ तक तो सिंपल है मेरे हिसाब से, सबको इजीली समझा होगा ये। अगला जो पार्ट है मतलब डिपेंडेंट कैसे करना, मतलब मैंने यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट की तो उसके बेसिस पे से मुझे बिल दिखने चाहिए यहाँ पे, वो करने का तरीका भी काफी सिंपल है। मैंने फिल्टर फंक्शन यूज किया यहाँ पे। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई किया, मैंने फिल्टर किया डेटा। मैंने जैसे ही कंपनी सिलेक्ट की यहाँ पे, इसके बेसिस पे वो इस डेटा में चेक करेगा कि इस पार्टी के कौन से इनवॉइसेस है और वो यहाँ पे मुझे फिल्टर कर देगा। जैसे हमने इस पिछले एग्जांपल में देखा था, यहाँ पे पार्टी का नाम सिलेक्ट करते से ही उसके इनवॉइसेस नीचे आ गए थे मेरे पास। तो उसी तरह मैंने यहाँ पे किया है, पार्टी का नाम जैसे यहाँ पे ऊपर सिलेक्ट होगा सेल B2 के अंदर, उसी तुरंत मुझे वो सारे यहाँ पे जो भी उसके बिल्स है वो दे देगा। एंड देन फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे अगेन ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाई एंड उसको रेफरेंस किया इस रेंज को। जैसे मैं इस रेंज को रेफरेंस करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली दिखा देगा। एंड इसका अगेन एक और फायदा क्या, ये डायनामिक, अगर सपोज मेरे पास एक लिस्ट जो डायनेमिक एरेस से नहीं बनी है, तो मुझे अगर यहाँ पे अप्लाई करना है, मुझे क्या सोर्स चाहिए, तो मुझे वो पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ही मेरे वो ड्रॉप डाउन में आएगा। लेकिन क्योंकि मैंने अब इसको एरे में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए सिर्फ एक हैश लिखना है उसके पहले, उस एरे में जितने भी आइटम्स है वो ऑटोमेटिकली मेरे लिस्ट में आ जाएगा। आप देखोगे अगर तो यहाँ पे ब्लैंक्स नहीं आ रहे कहीं पे, मतलब जिसने अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट कभी अप्लाई किया रहेगा उसको पता रहेगा कि बहुत बार प्रॉब्लम ऐसा आता है कि हम जब यहाँ पे नाम डालते हैं तो वहाँ पे वो जस्ट a minute. तो इन्होंने अप्लाई लिस्ट यहाँ पे इस लिस्ट में नीचे ब्लैंक्स भी आ जाते हैं। ये जो एरे इतना बड़ा रहेगा, तो यहाँ पे जितने आइटम्स रहेंगे इस एरे में, 4 आइटम्स 6 आइटम्स 10 आइटम्स जितने आइटम रहेंगे सिर्फ उतने ही मुझे लिस्ट में दिखाएगा। ये एक बहुत बड़ा फायदा है डायनेमिक एरेज यूज करने का। एंड ये चीज मैंने बनाई थी यूनिक एंड फिल्टर दोनों फंक्शन यूज करके। anybody has got any doubt regarding these functions, filter and unique? Yes, Manish. Bhushan bhai, yes. So इसकी होगी तो ये जो लिस्ट पे सामने आ रही है, सपोज किसी को सर्च करना है किसी एक कंपनी को, इसमें से मुझे बहुत डिफिकल्ट जाएगा उसका नाम ढूंढना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक और फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं सॉर्ट। अब सॉर्टिंग आपने की रहेगी, आप यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे सॉर्ट ऑप्शन आता है, इसमें आप सॉर्ट कर सकते हो। सॉर्टिंग भी हमने फिल्टर के अंदर जाके किया है बहुत बार, लेकिन मैं फॉर्मूले से भी सॉर्ट कर सकता हूँ डेटा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे यूनिक का आइटम निकाल के रखे है, मैं इसको सॉर्ट करके फॉर्मूला है वो अप्लाई करता हूँ। पहले लिस्ट देखो, हेरम ABC फास्टर जैसे नाम है वो सॉर्टेड नहीं थे, लेकिन जैसे मैंने इसको सॉर्ट किया अब ये नाम ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो गए, A to Z वाइज सॉर्ट हो जाएंगे। अब अगर मैं ये B D F जैसे है वो ऑटोमेटिकली सॉर्टेड डेटा मुझे मिल रहा है। सो ये फंक्शन एक है जिससे हम डेटा सॉर्ट कर सकते हैं बाय वे ऑफ फॉर्मूला। Sorting by way of using filters is again 365 में ही है, बाकी कहीं पर नहीं मिलेगा आपको। इसका एक और एग्जांपल मेरे पास मुझे देना है आपको। सपोज ये जो डेटा है मेरे पास, ये फिलहाल डेट वाइज, लेकिन मुझे मैं कैसे कर सकता हूँ ये चीज,
तो मुझे क्या करना है, डेटा चाहिए, मैं क्या करूंगा, सॉर्ट फॉर्मूला यूज करूंगा। इसका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो मुझे इसको पास ऑन करनी है दैट इज एरे। मुझे क्या एरे दिखाना है, अगेन मुझे जो पूरा डेटा है मेरा होना चाहिए। इसके बाद सॉर्ट इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब ये जो एरे आपने सिलेक्ट किया है इसमें से तो मैं इंडेक्स में 5 लिखूंगा। सॉर्ट ऑर्डर मतलब आपको असेंडिंग चाहिए या डिसेंडिंग चाहिए। अब मेरे केस में सपोज मुझे असेंडिंग चाहिए तो मैं 1 लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। नाउ यू कैन सी कि ग्रॉस टोटल जहाँ पे सबसे लोएस्ट है 214 से सबसे हाईएस्ट जहाँ पे बात है उसको मुझे सॉर्ट कर दिया बेटा, ओनली बाय वे ऑफ यूजिंग फॉर्मूला। आई हैव नॉट अप्लाइड एनी फिल्टर हियर और दिस सॉर्ट ऑफ हियर। मैंने सिर्फ वो फॉर्मूला अप्लाई किया तो सॉर्ट हो गया। मुझे सपोज इसको डिसेंडिंग करना है तो मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, माइनस हाईएस्ट वैल्यू वो ऊपर आ गई तो नीचे चली गई। सपोज इसको अमाउंट से सॉर्ट नहीं, जिसको नाम से नाम ये इंडेक्स 2 पे आएगा सेकंड कॉलम में, मैं इसको 2 करता हूँ ए वाले सबसे नीचे, तो वो नेम वाइज भी सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्टिंग आपको जो भी आप इंडेक्स नंबर वो सॉर्ट, ओके। सॉर्ट में किसी को कोई फॉर्मूला है, कोई काफी अच्छी फॉर्मूला है। हम सब लोगों ने मोर सेम चीजों पे यहाँ पे चलता है काम। इसका फॉर्मूला लगाने का तरीका वो ऐसा है कि लेट चीज को क्या डिफाइन करना है। सपोज मेरे केस में मुझे डिफाइन करना है x की वैल्यू है 5, फिर मुझे डिफाइन करना है y की वैल्यू है 10। ऐसे मुझे जितनी चीजें चाहिए मैं उतनी सारी डिफाइन कर सकता हूँ। एंड देन मुझे इस चीज के ऊपर क्या कैलकुलेशन करना है वो मुझे डालना है यहाँ पे। सपोज मुझे x प्लस y चाहिए तो मैं मेरी x की वैल्यू थी फर्स्ट यहाँ पर डालना x वैल्यू आंसर, तो x प्लस वाई से सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे वो x y दे देगा। सपोज मैं यहाँ पे x की चेंज करके 50 करता हूँ, y की चेंज करके 120 करता हूँ, यहाँ x माइनस y करता हूँ। जैसे जैसे मैं एक्सप्रेशन चेंज करूंगा उस हिसाब से आंसर चेंज करके देगा। ये फायदा है वहाँ पे मुझे चीज हर बार टाइप करनी है, मैं क्या कर सकता हूँ, उसको डिफाइन करता हूँ एक सिंगल लेटर से x y या कुछ लिखना है कुछ भी लिख सकते हो। आपको वो चीज को सेट देनी है वैल्यू एंड देन उसके बेसिस पर फिर इजीली कर सकते हैं। पढ़ने के लिए मेरे पास एक और एग्जांपल है यहाँ पे, अगेन सेल का डेटा है। सेल के डेटा मुझे डिस्काउंट फाइंड करना है। डिस्काउंट मेरा जो बेसिस है वो ऐसा है कि सेल वैल्यू अगर 50,000 के नीचे होगी तो मेरा 1 देना है, ऊपर डिस्काउंट देना है। तो नॉर्मल में क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर मुझे पहले डिस्काउंट का कॉलम मैंने ऐड किया है, डिस्काउंट में मैंने कितना डिस्काउंट फॉर्मूला लगाया है। अगर ये जो वैल्यू है इस कॉलम में E4 वो 50,000 से ज्यादा होगी तो मुझे 1% डिस्काउंट देना है, सॉरी 2% आएगा, तो ज्यादा 2% देना है तो 1% डिस्काउंट देना है। मैंने ये फॉर्मूला ऐड कर दिया, 50,000 से ऊपर इसे 2% आ गया, यहाँ पे 4440 इज लेस देन 50,000 इस पे 1% आ गया। एनीवेज तो ये मैंने डिस्काउंट का कॉलम बना लिया। एंड अगले कॉलम में मैंने डिस्काउंटेड अमाउंट डायरेक्ट कैलकुलेट की, तो 2 लाख into 1 माइनस दिस परसेंटेज, तो 0.98 into 0.98 करूंगा अगर मैं, तो मुझे डिस्काउंट वैल्यू मिल जाएगी। तो वो मैंने यहाँ पे किया है, तो मुझे यहाँ पे डिस्काउंट वैल्यू डायरेक्टली। लेकिन मुझे सिंगल कॉलम में अगर इसका आंसर फाइंड करना है तो मैंने वो किया है लेट फंक्शन यूज करके। मैंने क्या किया है, पहले चीज फॉर्मूला लगाते वक्त पहले दिया है कि मुझे क्या चीज डिफाइन करे, तो मैंने उसका नाम दिया डिस्काउंट। आप भी लिख सकते हो XYZ ABC कुछ भी लिख सकते हो, मैंने उसको डिस्काउंट नाम दिया। वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी,
तो मैंने यहाँ पे इफ फॉर्मूला यूज किया है, जो मैंने इस कॉलम F4 में यूज किया था, उसी फॉर्मूला मैंने यूज किया है। इफ अप्लाई किया मैंने, if the value of this E4 is greater than 50,000 then 1%, ठीक है। एंड इसके आगे जो ये पार्ट है उसमें मैंने क्या किया है कि मैंने जो एक्चुअल कैलकुलेशन मुझे करना है वो डाल दिया मैंने। तो मुझे E4 into 1 माइनस डिस्काउंट वो चीज करनी है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ ऑटोमेटिकली उसका आंसर मुझे मिल जाएगा। एक ही सिंगल कॉलम में लेट फंक्शन यूज करके आंसर कैलकुलेट कर लिया। मुझे दो कॉलम डालने की जरूरत है। मैंने डिस्काउंट को एक बार डिफाइन कर दिया है कि डिस्काउंट का मतलब क्या है, एंड देन फिर मैं आगे में डिस्काउंट जहाँ पे भी यूज करूँ ऑटोमेटिकली डिस्काउंट की वैल्यू यहाँ से लेते रहेगा। तो ये है फायदा लेट फंक्शन यूज करने का। किसी को कोई डाउट यहाँ तक लेट फंक्शन में? ओके, नेक्स्ट अगेन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी यूजफुल फंक्शन दैट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड एक्स लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप आप लोगों ने यूज किया होगा, बराबर है। रवि सर आपसे मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, आंसर चाहिए था। ये डेटा एक बार देख लीजिए, मुझे यहाँ पे डेट है, पर्टिकुलर वाउचर नंबर है, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। मेरे पास यहाँ पे एक मुझे कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है इस डेटा में से। जो इनवॉइस नंबर सपोज 10 इनवॉइस नंबर है तो उसकी डेट और पार्टी नेम मुझे यहाँ से चाहिए। तो क्या मैं इस डेटा के अंदर वी लुकअप लगा के डेटा निकाल सकता हूँ क्या? नहीं, वी लुकअप ऑलवेज पहले कॉलम से ही सर्च करता है। तो आपका इनवॉइस नंबर पहले कॉलम में अगर है तो ये सर्च होगा। बराबर। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वी लुकअप यूज करने का वो ये है कि वी लुकअप हमेशा आगे चलता है। मीनिंग मुझे जो चीज फाइंड करनी है वो उसके फर्स्ट कॉलम के आगे चाहिए। जैसे मेरे केस में मुझे क्या चाहिए, वाउचर नंबर तो है लेकिन मुझे डेट और पर्टिकुलर चाहिए जो उस डेटा के पीछे है, आगे नहीं है। समझ रहा है? यूज कर सकता हूँ, ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है वी लुकअप के बजाय मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक एक्स लुकअप करके फॉर्मूला है जो यूज कर सकता हूँ। तो एक्स लुकअप में होगा क्या कि देना है लुकअप वैल्यू, आपको क्या फाइंड करना है। तो मेरे केस में मुझे फाइंड करनी है ये इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर आपको कौन से एरे में फाइंड करनी है, कहाँ पे ढूंढना है इनवॉइस नंबर? तो मुझे चाहिए इनवॉइस नंबर इस कॉलम में, मेरे जो इनवॉइस नंबर कॉलम है उसमें। एंड इसके बाद आपका किस कॉलम का चाहिए, मुझे वो चाहिए है डेट कॉलम में से। तो जहाँ पे इनवॉइस में 10 रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग डेट कॉलम में क्या चाहिए। जैसे एंटर करता हूँ आई गेट द आंसर 26 में। सेम मैं हर जगह पे अप्लाई कर सकता हूँ, हर जगह पे उसका आंसर मिल जाएगा। ओनली थिंग इज मुझे यहाँ पे वो रेंज फिक्स करनी पड़ेगी, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे पार्टी नेम चाहिए तो अगेन आई कैन डू व्हाट आई कैन डू इज एक्स लुकअप वैल्यू 10 the array find this data and data from the array of name। ये मुझे यहाँ पे नेम दे देगा। अगर सपोज मुझे दो कॉलम एक साथ में चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स लुकअप दिस वैल्यू दिस डेटा गिव मी दिस टू कॉलम्स। उसमें दोनों कॉलम्स आपको देंगे, जो अलग अलग फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पॉसिबल है क्योंकि हम स्पिल्ड रेंज यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो अगेन स्पिल्ड हुआ है आंसर, मेरा एक आंसर एक सेल में नहीं है वो अगले सेल में गया है। स्पिल्ड होने के कारण यहाँ पे मुझे दो सेल में दिखा दिया। सेम फॉर्मूला में हर जगह पे अप्लाई करूंगा, मुझे आंसर हर सेल में मिल जाएगा उसका। एक इंटरेस्टिंग थिंग जो एक्स लुकअप यूज करके हम कर सकते हैं वो है इफ नॉट फाउंड। अगर जिसने एक्स लुकअप किया और वो इन्फॉर्मेशन उसको वहाँ पे नहीं मिली तो फिर उसने क्या दिखाना चाहिए। अगर मैं नॉर्मल वी लुकअप यूज करता हूँ, सपोज एग्जांपल बताता हूँ, वी लुकअप ये डेटा है इसमें सेकंड का कॉलम, मुझे वो जीएसटी नंबर दिखा दिया उसने। सपोज मैं यहाँ पे 100 करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाता है वो NA। लेकिन अगर मैं एक्स लुकअप में जाके यहाँ पे इफ नॉट फाउंड में कुछ लिखता हूँ, सपोज नो सच इनवॉइस, देता है NA बना, लेकिन
क्योंकि मैं एक्स लुकअप यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ये चीज अलग से डिफाइन कर सकता हूँ, इफ नॉट फाउंड के अंदर मैंने लिखा है नो इनवॉइस, वो मुझे यहाँ पे वैसे देगा, जहाँ पे इनवॉइस मिलेगा वहाँ पे वो बराबर से दिखाएगा, जहाँ पे नहीं मिलेगा आपको मुझे हटा देगा। 225 नंबर का इनवॉइस, नो सच इनवॉइस, 414 नंबर का इनवॉइस, नो सच इनवॉइस। तो ये एक अदर बेनिफिट है एक्स लुकअप यूज करने का। एक और फायदा एक्स लुकअप यूज करने का ये है कि जब हम सपोज वी लुकअप यूज करते हैं और मुझे सपोज आईजीएसटी कॉलम चाहिए, तो मुझे ये वाउचर नंबर से आईजीएसटी के बीच में कितने कॉलम्स है वो ढूंढना पड़ता है। यहाँ पे ऊपर C8 लिख के आ गया, मतलब 8 कॉलम्स है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि डेटा मेरा बहुत बड़ा है, तो उस केस में मुझे जल्दी समझता नहीं कि मुझे कौन सा कॉलम यूज करना है। एक्स लुकअप में ये प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको सिर्फ 2 रेंज देने की है, आपको कौन से रेंज में ढूंढना है, उसका करस्पॉन्डिंग कौन से रेंज का डेटा आपको चाहिए, आपको सिर्फ 2 रेंज देनी है, आपको कितना कॉलम है क्या है वो डालने की जरूरत है। तो अगेन ये एक एडेड बेनिफिट है एक्स लुकअप यूज करने का। डेफिनेटली वी लुकअप से काफी सिंपल करने के लिए मुझे आज भी पता है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स है या फिर बहुत सारे सीएम लोग भी मैंने देखे जिनको वी लुकअप ठीक से अप्लाई नहीं करता है, बिकॉज इट इज अ वेरी कंफ्यूजिंग फॉर्मूला, नो डाउट। लेकिन एक्स लुकअप अगर आप यूज करोगे तो डेफिनेटली बहुत आपको ज्यादा कुछ चीजें देनी नहीं उसके अंदर, सिर्फ आपको जो एरेज है वो सिलेक्ट करना है और आपका रिजल्ट आपको इजीली मिल जाएगा। आई होप एक्स लुकअप इज क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू। किसी को डाउट इसके अंदर? ओके, नो डाउट। अगला जो फंक्शन जो आपको दिखाना है दैट इज कॉल्ड एज लैम्डा, एंड लैम्डा इज समथिंग व्हिच इज वेरी न्यू टू एक्सेल नाउ। ये अगेन जो ऑफिस इनसाइडर्स है उनको ही अवेलेबल है, बाकी लोगों को अवेलेबल नहीं है ये फॉर्मूला। तो अगर आपके पास में होगा फिर भी अगर आप यहाँ पे लैम्डा लिखकर ट्राई करोगे तो आपको यहाँ पे वो फंक्शन दिखाएगा ही नहीं। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट ये हो। तो इसका रीजन यही है कि ये सिर्फ जो इनसाइडर्स है, ऑफिस इनसाइडर्स है, उनको ही वो एप्लीकेशन में अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यू कैन सी बीटा चैनल में हूँ मैं, मुझे जो अपडेट्स है बिकॉज आई हैव एनरोल्ड फॉर इनसाइडर अपडेट्स, सो जो बीटा चैनल में रहेंगे सिर्फ उनको ही ये अपडेट अभी तक आया हुआ है, बिकॉज ये अभी भी टेस्टिंग फेज में है। एक बार माइक्रोसॉफ्ट इसको पूरा टेस्ट कर ले उसके बाद उसको वो एक्चुअल सबके लिए रोल आउट करेगा, बट ओनली टू ऑफिस 365 अदर यूजर्स के लिए करेगा। सो व्हाट इज दिस लैम्डा फंक्शन? लैम्डा समझने के लिए मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से शुरू करता हूँ। इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग मतलब ये समझ लो कि यू कैन क्रिएट योर ओन फंक्शंस इन एक्सेल। आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको VBA यूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आपके खुद के फॉर्मूलाज, आपके खुद के फंक्शंस डिफाइन कर सकते हो टैली एक्सेल के अंदर डायरेक्ट। सो एकदम सिंपल बेसिक एग्जांपल देना हुआ, तो सपोज मुझे एक फंक्शन बनाना है जिससे जो 2 नंबर्स है उसका वो टोटल मुझे निकाल के देगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे एक कॉलम में एक रो में मेरे पास 5 है और दूसरे सेल में मेरे पास 4 है। मुझे एक फंक्शन चाहिए जिसका नाम रहेगा सम ऑफ सेल्स, ये नाम का मुझे फॉर्मूला चाहिए। जो मैं उसको 2 सेल्स दूंगा उसको सम निकाल के देगा। सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब सम निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए समझो सिर्फ ये कि हम क्या कर रहे हैं, सेल्स नाम का फॉर्मूला बनाना है। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं ऑफ सेल्स में जाऊँ, ऐसा कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं एक्सेल के अंदर, मुझे एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे देनी है। जैसे हम कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं, सपोज मैंने वी लुकअप यूज किया, ये जो लुकअप वैल्यू है, टेबल एरे है, कॉलम इंडेक्स है, ये इसके पैरामीटर्स हुए। उसी तरह जो मैं फंक्शन अभी बनाना चाहता हूँ उसके पैरामीटर्स क्या क्या रहेंगे। तो मेरे केस में मैं सपोज उसको बोलता हूँ मेरा पैरामीटर A और B, ये 2 पैरामीटर्स मेरे होने चाहिए, और ये पैरामीटर्स के ऊपर आपको डिफाइन करना है। अब मेरे प्लस B ये फॉर्मूला बनाना है, तो मैंने इसको ये कर दिया, तो मेरा लैम्डा फंक्शन क्रिएट हो क्या करेगा, A plus B कैलकुलेट करके देगा। जैसे मैं इसको एंटर करूंगा मुझे वो एरर देगा, कैलकुलेशन एरर। तो इसलिए क्योंकि लैम्डा फंक्शन डायरेक्टली ऐसे काम नहीं करता है, इसको काम करने के लिए पड़ेगी। तो मैं इस फॉर्मूले को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं जाता हूँ फॉर्मूले के अंदर, मुझे यहाँ पे अब डिफाइन करना है मेरे फॉर्मूले का नाम। मैंने फॉर्मूले का नाम दिया है सम ऑफ
एंड देन इसको जो लैम्डा फंक्शन क्रिएट किया था उसको यहाँ पे डाल ओके कर। आप देखोगे अब सम ऑफ सेल्स से फंक्शन नेम क्रिएट कर क्लोज करता हूँ। अब सपोज मैं यहाँ पे सम ऑफ सेल्स लिख सम ऑफ सेल अलग फंक्शन अलग फॉर्मूला मुझे अब दिखाएगा वो। इस फॉर्मूला में मुझे दो चीजें देनी है, पहली है ए वैल्यू, मेरे लिए ए वैल्यू ये है, और दूसरी है बी वैल्यू, मेरे लिए बी वैल्यू ये है। जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ मुझे उसका आंसर दे देगा। सपोज मैं यहाँ पे 25 लिखता हूँ, यहाँ पे 40 लिखता हूँ, तो ए प्लस बी मेरे लिए ये है, ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी की वैल्यू जो रहेगी वो मुझे दे देगा। सपोज मैंने इसको चेंज किया, सम ऑफ सेल्स को यहाँ पे चेंज किया, मेरे को यहाँ पे चाहिए 2 टाइम्स ए प्लस बी, ये मेरा नया फॉर्मूला होना चाहिए। सपोज मैंने इसको फॉर्मूला को चेंज कर दिया, यू वांट टू सेव यस। ये 2 कर दे रहा है उसको, उसके प्रॉब्लम। ठीक है, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। सपोज जैसे इस केस में ही है, मेरे पास यहाँ पे 2 नंबर्स है और मुझे उसका सम का स्क्वायर चाहिए। अगर आपको याद होगा ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन जो है प्लस बी होल स्क्वायर, इसको हम अगर शॉर्ट मतलब एक्सपैंड करके लिखे तो ये ऐसे बनता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसी चीज को मैंने लैम्डा में डिफाइन करके रखा है, उसको मैंने नाम दिया है लैम्डा को स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ दिस एंड दिस, गिव मी द आंसर हियर। सपोज मैं यहाँ पे इसको 1 करता हूँ, 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 1 प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर इज 25। लेकिन इसको डिफाइन करते हुए मैंने कैसे डिफाइन किया है, I go to name manager square, you can see the lambda function here। मैंने lambda function में क्या किया है समझने के लिए यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। मैंने पैरामीटर पहले डिफाइन किया है, मेरे जो फॉर्मूला है उसमें मुझे 2 चीजें इनपुट करनी है, ए वैल्यू और बी वैल्यू। मैंने ए और बी पैरामीटर डिफाइन किया, और जो कैलकुलेशन मुझे करना है वो ऐसे करना है कि ए का स्क्वायर करो प्लस बी का स्क्वायर करो प्लस 2ab करो। ये फॉर्मूला मुझे मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो एक्सेल क्या करेगा, जब भी मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा स्क्वायर नाम का, तो वो उसमें जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा वो ए और बी रहेगी, और उसको इस एक्सप्रेशन में ऐड इनपुट करके वो ऐसे कैलकुलेशन करेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे मैंने स्क्वायर नाम का फॉर्मूला यूज किया, ए वैल्यू मेरी 1 है, बी वैल्यू मेरी 5 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 into 1 into 4 ऐसा कैलकुलेट करके मुझे वो देगा वैल्यू 25। This is how you can use lambda to define your own formulas or define your own functions। Again यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल उसका कैलकुलेट करके रखा है। हमने ये एक एग्जांपल देखा था जहाँ पे हमने लेट का यूज करके डिस्काउंट वैल्यू फाइंड की, लेकिन वही मैंने लैम्डा यूज करके अब कैलकुलेट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने उसका नाम दिया है फॉर्मूला का डिस्काउंट। आप देख सकते हो, अगर मैं नॉर्मल फॉर्मूलाज देखूँ टैली के एक्सेल के, तो उसके पहले fx लिखा होता है, लेकिन लैम्डा से जो भी मैं डिफाइन करता हूँ उसको आइकॉन वो अलग दिखाता है, उसको नाम है, उसको दिखाता है ये टेबल के तरीके से। तो मैंने सिलेक्ट किया डिस्काउंट, और इस डिस्काउंट के फॉर्मूले मैंने सिर्फ एक ही इन्फॉर्मेशन देनी है, वो है 2 लाख। हमारा फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है कि ये वैल्यू जो है उसको चेक करेगा, अगर वो 50,000 से ज्यादा है तो 2% डिस्काउंट, नहीं तो 1% डिस्काउंट। मुझे इसमें सिर्फ एक ही इनपुट देना है, डिस्काउंट मैंने सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट की E4। जैसे मैं ये करूंगा वो मुझे यहाँ पे आंसर दे देगा। फॉर्मूला हर जगह पे अप्लाई कर दूंगा तो सब जगह से उसको मुझे डिस्काउंट। इसका भी जो लैम्डा मैंने सिंपल काफी इसमें जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द एक्सप्रेशन, दैट इज द इनपुट दैट आई वांट टू गिव टू दिस फॉर्मूला। तो मेरे लिए मैंने उसका नाम दिया सेल्स। आप अगेन यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हो आप उसको, लेकिन जो नाम यहाँ पे यूज करोगे वही आपको आगे फॉर्मूला में यूज करना है। और मैंने इसको क्या किया कि इफ फंक्शन में रैप कर दिया है कि जहाँ पे सेल्स इज लेस देन 50,000
तो उसको सेल्स इंटू 99.99 कर, तो 1% डिस्काउंट, एंड जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो सेल्स इंटू 98% और 9.98। तो इस सिंपल तरीके से मैंने एक मेरा खुद का फॉर्मूला बना लिया। अब मेरे पास कहीं पे कोई वैल्यू है 5 लाख, सपोज यहाँ पे मेरे पास 5 लाख अमाउंट है मेरे पास, मुझे यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। मुझे वो चीज वापस लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद का एक नया फॉर्मूला क्रिएट कर दिया है डिस्काउंट नाम का, एंड वो फॉर्मूला यूज करके मैं कहीं पे भी उसका कैलकुलेशन कर सकता हूँ। सपोज यहाँ पे 2,50,000 मेरे पास है, यहाँ पे मैंने डिस्काउंट मुझे यूज करना है, मुझे आपको वो दे देगा। तो जिस तरीके से हम बाकी कोई फॉर्मूला एक्सेल में यूज करते हैं उसी तरीके यूज करके मेरा खुद का एक फॉर्मूला डिफाइन कर सकता हूँ। अगेन स्काई इज लिमिट इसके केस में, आपको ये कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, यूज हर एक का यूज अलग अलग हो सकता है, बट स्काई इज लिमिट। सो यू कैन डिफाइन योर ओन फंक्शंस एंड यू कैन यूज एंड रीयूज देम। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक बार वो फॉर्मूला बना दिया है, तो मैं उसको जितने बार चाहूँ आप यूज कर सकता हूँ इस पूरी शीट के अंदर। So this is what is a lambda function. So this is where all the new functions or new formulas that are there in Excel 365. इनका यूज करके मैंने काफी टाइम से, एज आई सेड, कि मैंने बहुत सारा टाइम सेव किया है। एंड ये जो मैंने आपको दिखाया, दिस इज जस्ट टिप ऑफ दैट आइसबर्ग। अगेन स्काई इज द लिमिट। आप ये फॉर्मूला कब कहाँ कैसे यूज कर सकते हो, ये हर एक का अलग अलग तरीके से कर सकते हो, बिकॉज एक्सेल में किसी एक चीज को करने के मल्टीपल तरीके हैं। वही चीज मैं फिल्टर लगा के भी कर सकता हूँ, फिर फिल्टर फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ जैसे। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। बट अगेन यू नीड टू नो कि ऐसा कुछ आ रहा है आगे फ्यूचर में। अगर आप ऑफिस 2019 या फिर ऑफिस 2021 अभी आएगा, तो वो अगर आप लेते हो तो हो सकता है कि उसमें ये ऑप्शंस ना हो। एंड अदर थिंग, ये आज है, अगले एक साल में एक्सेल और कुछ नया लाएगा, तो वो चीज आपको हो सकता है कि पिछले वर्जन में ना मिले। उसके लिए आपको ऑफिस 365 ही यूज करना पड़ेगा। इट माइट सीम कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको हर साल करना पड़ रहा है, बट बिलीव मी, the pros and benefits are more than the cost, so it is very cost effective, at least in my case. Any doubts anybody has got? भूषण सर, अभी फेसबुक पे जब हम देखते हैं ना, तो उसमें ऑफिस 365 के नाम से बहुत सारे सेलर 699 रुपए में 6 यूजर, 5 यूजर, 4 यूजर ऐसे दे रहे हैं लाइफ टाइम के लिए। इस पे आपकी क्या राय है? सबसे पहली चीज तो लाइफ टाइम ऑफिस 365 का लाइसेंस कोई भी नहीं दे सकता। इवन माइक्रोसॉफ्ट का खुद का अगर कोई है तो वो भी आपको सेल नहीं कर सकता, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 उन्होंने लाया ही सब्सक्रिप्शन मॉडल के लिए था, तो वो लाइफ टाइम आपको कोई नहीं दे सकता है। हाँ, 2016, 2010 ये लाइफ टाइम के ही एडिशंस है, तो वो आपको डेफिनेटली लाइफ टाइम के लिए मिलेंगे ही। लेकिन ऑफिस 365 अगर कोई एडवर्टाइज कर रहा है कि वो आपको लाइफ टाइम के लिए देगा, तो दैट इज इम्पॉसिबल। सेकंड थिंग कि जो आपने बात की कि 6 यूजर्स 7 यूजर्स, हाईएस्ट 6 यूजर्स ही है, 7 यूजर्स का भी कोई आपको दे नहीं सकता है, तो वो भी अगर एडवर्टाइजिंग हो रही है वो गलत एडवर्टाइजिंग है। लेकिन आपको बात की है तो डेफिनेटली जो डिस्काउंटेड एडिशंस होते हैं वो मिलते हैं। मैं खुद यूज कर रहा हूँ, एक वेबसाइट है गुड ऑफर 24 करके, जिससे मैंने वो परचेज की थी। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं, ऑफिस और एंटरप्राइज, मैंने आपको 2 एडिशन दिखाए हैं ऑफिस 365, एक पर्सनल और एक फैमिली। लेकिन ये है होम यूजर्स के लिए। बिजनेस यूजर्स के लिए उनके और अलग काफी एडिशंस है, 4 या 5 कुछ और एडिशंस है। तो मेरे पास जो मैं यूज कर रहा हूँ वो है ऑफिस 365 का बिजनेस एडिशन और एंटरप्राइज, एंड आई बॉट दिस फॉर 4 or 5,000 rupees, and that too I had purchased it around 1.5 year ago। उसके बाद मुझे रिन्यू करना नहीं पड़ा वापस कभी, एंड मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया उसको। बट अगेन आई गेस इट्स ऑन माय लक, इससे काम चलेगा। लेकिन जरूरी नहीं कि अगर आप करो वहां से तो वो चलेगा ही नहीं चलेगा, यू नेवर नो। सो ट्राई कर, अगर 700 रुपीज में है तो गैम्बल करने में कोई हर्ज नहीं, मुझे लगता है 700 रुपीज ओके। ओके, थैंक यू। वेलकम।
वन मोर थिंग, अगर आपको ऑफिस सिस्टम परचेस नहीं करना है तो 1 मंथ का फ्री ट्रायल भी देते हैं वो, तो यू कैन गो एंड डाउनलोड ऑफिस सिस्टम एंड यूज इट फ्रीली फॉर 1 मंथ। एंड अगर आपको लगता है कि फीचर्स आपके काम के तो आप उसको परचेस भी कर सकते हो, सो यू कैन डू दैट। ये तो मैंने सिर्फ दिखाया आपको, लेकिन आप जब खुद से करोगे, खुद से करने जाओगे वो चीज़, तो आपको और डिटेल समझेगा। मैं कितना भी बोलूँ, जब तक आप लेकिन प्रैक्टिकली नहीं करते हो तो आपको आई गेस इसका सिर्फ 40-50% ही समझेगा। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप करोगे उस चीज को, तो आपको उसमें और अंडरस्टैंडिंग आएगी और उसका यूज केस आप और बना सकोगे कि आप स्पेसिफिक ऑफिस काम के अंदर आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। डेफिनेटली दैट वुड बी पॉसिबल ओनली इफ यू यूज इट बाय हैंड। So for that you can definitely go and use the trial version once for 1 month, and then if you are happy with the updates, or if you are happy with all the functions, and if you are happy with all the features that it is providing, then you can definitely buy it. और किसी को कोई डाउट? No doubts. So thank you everyone. I hope you would have got at least some value addition to this today. Believe me, मैं जब ये कर रहा था तो तैयारी करते वक्त मुझे value addition मिली है। For me, Excel is like something new every day. जब भी मैं काम करता हूँ, इस हर रोज नया है मुझे करने को, हर रोज को नया चीज समझने मिलती है। So, but the only thing required is you need to do something. You need to think out of the box. अगर आप चीजें करने को ट्राई करोगे एक्सेल में, तो आपको हर चीज के लिए अलग अलग तरीके करने के मिलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट दिखा है, मेरा करने का तरीका अलग है, आपके पास किसी के पास और कोई अलग तरीका होगा, किसी और का और कोई तरीका अलग होगा। बिकॉज एक्सेल इतना वास्ट है कि आपको एक चीज करने के मल्टीपल तरीके से रहते हैं। बट अगेन, जितना आप इसमें प्रैक्टिस करोगे, जितना इसमें काम करोगे, उतना आपको और समझने मिलेगा। So thank you everyone, and thank you Prashant sir, and thank you Jalgaon branch for giving me this opportunity, a bit of what I know of Excel 365 with all the fellow members, and I definitely hope कि ये काफी useful है। Thank you so much. अगं पण इकडे जास्त थंड आहे ना। Thank you, Bhushan bhai. I request all to please mute themselves. Thank you, Bhushan bhai. Are you getting my voice? Yes. Yeah. Thank you, CA Bhushan Gadia, sir. You have explained the Office 365 Excel, use of Excel in a very simple and very lucid manner. I hope all the participants must have got benefited by this. And this one being the very new subject. And Office 365 के बारे में अभी तक इतना जानकारी लोगों को नहीं था. The people used to having mostly people were using the VLOOKUP function, and there are VLOOKUP has its own constraints. Okay. So by this new version of Office 365, we have got that how we can use by formula also, and even filter. The filter we can use by formula. This one thing first time we have known to it was to all the participants. So we are very thankful to all the participants for their patience hearing. And if anyone has having any queries, they can ask it now. No problem. They can ask Bhushan bhai idhar hi abhi. So they can ask if anyone is having any query. But I don't think there will be any queries because you have explained in a very simple and very proper manner. So I don't think. But if anybody is having, they can ask. Anybody So is if you having go any and try at a later stage, and you can, if you are stuck at something, then you can definitely get back to me anytime. I would be very happy to help you out regarding anything. If you face any problems. तो जब तक आप कुछ करोगे नहीं, कुछ ट्राई नहीं करोगे, तब तक आई गेस तब तक आएगा नहीं. आपको क्या प्रॉब्लम है वो नहीं समझेगा, पता नहीं चलेगा. Right. So thank you, Bhushan bhai, and thanks to all the participants for the patience hearing. Thank you very much. So I declare now